بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کے ساتھ دوں گا محمد انیس۔ کھیلوں میں جہاں اہم خبریں شامل کریں گے، وہیں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سپر لیگ کے شاندار اختتام کے بعد PSL 8 کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کیسا رہے گا۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ غریب اور متوسط طبقے کے لیے حکومت کا بڑا ریلیف، مفت آٹے کے بعد کم آمدن اور غریب عوام کے لیے 50 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم ریلیف پیکیج۔ موٹر سائیکل، رکشہ، 800 cc اور دیگر چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے والے صارفین مستفید ہوں گے۔ شدید معاشی مشکلات کے باوجود غریب عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے کوشاں ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ عمران خان ملک دشمنی اور دنگا فساد کے ایجنڈے پر عمل پیرا، مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت جانا غنڈہ گردی ہے۔ یہ شخص قانون کا سامنا کرنے کی بجائے عدلیہ پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، چوریوں کا حساب دینے کی بجائے ڈرامے کر رہا ہے۔ عمران نیازی جھوٹ سے لوگوں کو گمراہ کر کے چوری کے حساب سے بچ نہیں سکتا۔ عوام ووٹ کی طاقت سے انتخابات میں اس فتنے کو نکال باہر کریں گے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ عمران خان سیاستدان نہیں، دہشت گرد ہے۔ PTI نے خود کو مسلح گروہ میں تبدیل کر لیا۔ اسلحات، جتھوں اور غنڈہ گردی سے عدالتوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ عمران نیازی قانون پر عمل کے بجائے انتشار پھیلانے میں مصروف ہے۔ بات چیت سیاستدانوں سے ہوتی ہے، دہشت گردوں سے نہیں۔ معاشی تباہی اور عوام کے منہ سے نوالا چھیننے والا اقتدار چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے۔ ریاست کے ریٹ قائم رکھنا حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے PTI کارکنوں کی اسلحہ، ڈنڈوں، غلیلوں اور پتھراؤ کی ویڈیو جاری کر دی۔ PTI کے کارکن سیاسی نہیں، تربیت یافتہ دہشت گرد اور کالعدم تنظیم سے بھرتی کیے گئے۔ شرپسند عناصر عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، ریاست کو کارروائی کرنی چاہیے، مریم نواز۔ زمان پارک اور گرد و نواح میں PTI کارکنوں نے دوبارہ کیمپ لگا لیے، ٹریفک کی روانی متاثر، علاقہ مکینوں کی زندگی اچیرن۔ شہریوں کا PTI کارکنوں کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تصادم کا رویہ اپنانے اور پولیس وین نہر میں پھینکنے پر اظہار تشویش۔ عمران خان کی اسلام آباد میں پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کا معاملہ، عمران خان سمیت PTI کے رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات شامل۔ پولیس کے مطابق ہنگامہ آرائی میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ غریب طبقے کو ریلیف کی فراہمی، وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں مفت آٹے کی فراہمی کا آغاز۔ رمضان المبارک کے دوران ہر غریب خاندان کو آٹے کے 3 تھیلے ملیں گے۔ ایران سے گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا منصوبہ، 138 کلومیٹر ترسیلی لائن کی تنصیب ریکارڈ مدت میں مکمل۔ منصوبے سے گوادر کے گھریلو اور صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم ہو سکے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں یوم پاکستان پر مبارکباد کے پوسٹرز چسپاں، پاکستانی پرچم اور پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی تصاویر آویزاں۔ گو انڈیا گو بیک اور جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کے نعرے درج۔ خالستان کی تحریک زور پکڑنے لگی، آسٹریلیا کے شہر برسبن میں ریفرینڈم، ہزاروں سکھوں نے بھارت سے آزادی کے حق میں ووٹ ڈالا۔ سفارتی محاذ پر ناکامی کے بعد بھارت سائبر حملوں پر اتر آیا، ووٹنگ کے عمل میں بھارتی ہیکرز کے حملوں کے سبب خلل پڑا۔ ریفرینڈم میں سکھوں نے بھارت سے آزادی کا فیصلہ سنا دیا، سکھ رہنما ڈاکٹر بخشیش سنگھ سندھو۔ بحیرہ اسود کے راستے اناج راہداری سمجھوتے کی مدت بڑھانے پر اتفاق، یوکرین، ترکیہ اور اقوام متحدہ میعاد 120 دن بڑھانے پر متفق۔
روس کی جانب سے معاہدے کو 60 روز تک بڑھانے کا اعلان۔ شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ، میزائل 800 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد بحیرہ جاپان میں جا گرا۔ جاپان اور جنوبی کوریا کی میزائل تجربوں کی مذمت، خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ ایکواڈور اور پیرو میں شدید زلزلہ، 14 افراد ہلاک، 350 سے زائد زخمی، شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی۔ متعدد عمارتیں منہدم، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں بارش، بعض علاقوں میں ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، جنوبی بلوچستان، بالائی پنجاب، زیریں سندھ اور کشمیر میں آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی۔ Gets the Yorker spot on. They've got to go for three. They've got to go for three. It's in the gap. Can they get back? They can't. It's Visa. Visa with the throw. Oh, take him off. It's done. It is done. Lahore Qalandars have won the Champions Trophy. It's presented by Mr. Najam Aziz Sethi and Mr. Mohammed Aurangzeb. Congratulations to the Lahore Qalandars. They are victorious again this season. پاکستان سپر لیگ 8 تمام تر رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر، بہترین کارکردگی دکھانے والے پلیئرز پر مشتمل PSL 8 ٹیم کا اعلان۔ چیمپئن لاہور قلندرز کے شاہین شاہ آفریدی کپتان، ملتان سلطانز کے 5، پشاور زلمی کے 2، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ، لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا ایک کھلاڑی شامل۔ اور تیمور خواجہ نے ہب جیپ ریلی کا ٹائٹل جیت لیا، دفاعی چیمپئن صاحبزادہ سلطان کی دوسری پوزیشن۔ خواتین کی ریس میں دینا پٹیل فاتح، 30 کلومیٹر ریس میں نامور ریسرز کی شرکت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ساتویں خانہ و مردم شماری ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے 1 مارچ سے 4 اپریل 2023 کے دوران ہو رہی ہے۔ مردم شماری کے عملے سے مکمل تعاون کرتے ہوئے اپنے قوائف ٹھیک فراہم کریں اور گھر آنے والے نمائندے کو اپنا اور اپنے خاندان کا شناختی کارڈ یا بے فارم لازمی فراہم کریں۔ اور جن لوگوں نے اپنا شمار خود سے یعنی سیلف انیمریشن کی ہے، وہ مردم شماری کے گھر آنے والے نمائندے سے دیے گئے UTN نمبر کے ذریعے اپنے قوائف کی تصدیق کروائیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں آپ کا تعاون ملک کی تعمیر و ترقی میں معاون۔ پاکستان ادارہ شماریات، حکومت پاکستان۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے غریب اور متوسط طبقے کے لیے بڑے ریلیف کی۔ موٹر سائیکل، رکشہ، چھوٹی گاڑیوں اور کم آمدنی والے لوگوں کی سواری کے لیے پیٹرول میں 50 روپے فی لیٹر تک ریلیف پیکیج ملے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ اداروں کو کم آمدن عوام کے لیے 50 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم ریلیف پیکیج کے تحت پیٹرولیم سبسڈی کے عملی پروگرام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم ریلیف پیکیج پر جائزہ اجلاس لاہور میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پیٹرولیم سبسڈی میں موٹر سائیکل، رکشہ کے علاوہ 800 سی سی سمیت دوسری چھوٹی گاڑیوں والے تمام کم آمدن صارفین کو شامل کیا جائے اور پیٹرولیم سبسڈی کے لیے 50 روپے فی لیٹر تک کی رقم مختص کی جائے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ پیٹرولیم سبسڈی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون سے جامع حکمت عملی مرتب کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شدید معاشی مشکلات کے باوجود غریب عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے کوشاں ہے۔ موٹر سائیکل، رکشہ اور چھوٹی گاڑیاں کم آمدن عوام کی سواری ہے، اس کے لیے پیٹرولیم سبسڈی براہ راست غریب عوام کے ریلیف کا باعث بنے گی۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے اجلاس کو کم آمدن افراد تک پیٹرولیم سبسڈی کی فراہمی کی حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ عمران خان مسلسل جھوٹ بول کر
قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے سیاست میں گالم گلوچ اور بد تہذیبی کے کلچر کو فروغ دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان نے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سمیت سیاسی مخالفین پر الزام تراشی کی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فتنہ خان کے مکر و فریب کو قوم کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مریم نواز نے اسے چیلنج کرنے کا، اسے ایکسپوز کرنے کا جو اس نے قدم اٹھایا تھا وہ اس میں کامیاب رہی ہے۔ اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اب تکلیف پہنچی اور اسے اب یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ مجھے ایکسپوز کرے گی، میرے جھوٹ کو پکڑے گی، اور میں جو یہ فراڈ پوری قوم سے کر رہا ہوں اور میں جو یہ فتنہ پھیلا رہا ہوں، جو میں ملک میں فساد پھیلانا چاہتا ہوں، اس کو جو ہے وہ روکے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ آج اشاروں کنایوں میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اندر کا بغض جو ہے وہ نکال رہا تھا۔ مریم نواز جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ سچ دکھا رہی ہے، وہ تمہیں تمہارے چہرے کا نقاب جو ہے، جو ایک فتنے کا نقاب ہے، اس کو اتار رہی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے کل مسلح جتھوں کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت جانا غنڈہ گردی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ شخص قانون کا سامنا کرنے کے بجائے جتھوں سے عدلیہ پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر آپ عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو 300-400 لوگوں کو، جن کو گیٹ کے اوپر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ اندر لے کے جانا چاہتے تھے، جو آپ کی گاڑی کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہونا چاہتے تھے، آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواز ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں، اور یہ مسلح لوگ جو ہیں یہ جوڈیشل کمپلیکس میں اگر داخل ہو جاتے تو پھر وہاں پہ اندر کیا صورتحال ہو؟ اور کیا یہ جج صاحب کا، عدالت کا یہ حکم نہیں تھا کہ یہ ایک لسٹ ہے، پولیس اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو اندر آنے دے اور اس کے علاوہ کسی کو اور نہ آنے دے؟ یہ آپ کے ساتھ جو مسلح لوگ تھے، کیا یہ اس لسٹ میں شامل تھے؟ اس لسٹ میں آپ کے جن لیڈرز کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، آپ کے وکلاء کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، اور یہ جو آپ موب ایک لے کے جانا چاہتے تھے، مسلح موب، آپ بتائیں کہ وہ جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل تھا؟ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان چوریوں کا حساب دینے کے بجائے ڈرامے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ملکی معیشت تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے IMF معاہدے سے روگردانی کر کے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عوام ووٹ کی طاقت سے انتخابات میں اس فتنے کو مائنس کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ریاست کی رٹ قائم رکھنا حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لاڈلے کو رعایت دے کر ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو سکتی۔ PTI نے خود کو مسلح گروہ میں تبدیل کر لیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد سفیان سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اقتدار چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے۔ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہوتا تو ہمارے پاس اختیار بھی تھا اور ریاستی طاقت بھی، ہم اسے کب کے گرفتار کر چکے ہوتے۔ وہی شخص جو 4 سال اس ملک پر مسلط رہا اور وہ ایک سیاسی دہشت گرد بن کر اس نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا، بہنوں کے، بیٹیوں کے کمروں کے اندر حملہ آور ہوا، ان کو جیلوں میں ڈالا، گرفتار کیا، ہسپتالوں میں گھسیٹا اور سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ معیشت تباہ ہوئی، عوام بے روزگار ہوئی، عوام غریب ہوئی، لوگوں کے منہ سے روٹی چھینی گئی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گیس، بجلی، دوائی مہنگی ہوئی۔ وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے، وہ آج سیاسی دہشت گرد نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عدالت کی محافظ پولیس اور انصاف کی محافظ عدالت ہوتی ہے۔ پولیس کی رٹ کو عدالتیں کمپرومائز کریں گی تو اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی اور پھر اس ملک کی ہر گلی کا اپنا قانون ہوگا۔ یہ عدالت کو دھمکی سے، اسلحے سے، غنڈہ گردی سے، دہشت گردی سے، بدماشی سے ڈرا رہا ہے۔ اور کل کیا ہوا؟ جو ہم کہہ رہے تھے۔
लाहौर से लेकर जमान पार्क से लेकर इस्लामाबाद तक, ट्रायल कोर्ट तक असले से लेस, जत्थों से लेस, गुंडों से लेस, डंडों से लेस, हथियारों से लेस, पत्थरों से लेस एक शख्स रियासत पे हमला करते 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 इस्लामाबाद पहुंचा और वो पेश नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गरीब अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई है। बलूचिस्तान और सिंध में भी जल्द मुफ्त आटे की तकसीम शुरू हो जाएगी। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्विटर में अपने पैगाम में कहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन सियासी नहीं हैं। पीटीआई कारकुन तरबियत याफ्ता दहशतगर्द और कलदम तंजीम से भर्ती किए गए हैं। इमरान खान की हिमायत शरपसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल कि बहुत देर हो जाए रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियोस देखकर हकायक से पर्दापोशी नहीं की जा सकती। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में पीटीआई कारकुनों की असलहा, डंडों, गुलेलों और पत्थरों के इस्तेमाल की वीडियो जारी कर दी। केनाल रोड पर जमान पार्क और इसके गिरदोनवाह में पीटीआई के कारकुनों ने दोबारा से कैंप लगा दिए हैं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम एक बार फिर मुतासिर हो रहा है। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। गुज़श्ता रोज़ इंतजामिया ने केनाल रोड पर जमान पार्क और उसके गिरदोनवाह में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से खड़ी रुकावटों, कैंप्स और तजावजात को हटा दिया था, जिससे कई हफ्तों से जहनी कर्ब में मुब्तला इलाका मकीनों ने सुख का सांस लिया। ताहम आज फिर पीटीआई कारकुन टोलियों की सूरत में जमान पार्क, केनाल रोड पर जमा हो गए और दोबारा कैंप्स लगा लिए। कारकुन सारा दिन शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे। शहरियों ने पीटीआई कारकुनों के कानून नाफिज करने वाले इदारों से एक मरतबा फिर तसादम के रवैये और पुलिस की गाड़ी नहर में फेंकने पर तशवीश का इजहार किया है। ज्यादती की है इन्होंने कि जो पुलिस वाली की गाड़ी इन्होंने फेंकी है। अब देखें कि वो अगर पुलिस है तो वो अगर हमें रोक रही है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए है। ये पुलिस वालों को जो मारना है ये तो जुल्म है, ज़्यादती है, क्योंकि हमारे जो कौम के मुहाफ़िज़ हैं, हमारी मदद के लिए उनको हायर किया गया है, तो ये मतलब उनके साथ हमें चलना चाहिए। कहीं भी जाएँ रास्ता आगे से बंद होता है, मतलब कोई रास्ता होता है 15 मिनट का, वो 2-2 घंटे रोड पे घूमते रहते हैं। पीटीआई कारकुनों की हड़तरमी के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर हो गया, जिससे अवाम शदीद परेशान है। ट्रैफिक जाम है, इनको पता नहीं कैसे आएगा समझ के ये क्या कर रहे हैं। रात को 2 बजे भी आओ तो 2-2 घंटे लाइन में लग के निकलना पड़ता है, और वो बाहर निकली होती है आवाम डंडे सोटे लेके, पता नहीं लगता कब शीशे टूट जाएं, कब क्या हो जाए। एम्बुलेंस को मसला हो रहा है, आने जाने में बहुत परेशानी है। जो 10 मिनट का सफ़र होता है वो घंटों में गुजरता है। ये रास्ते ब्लॉक होते हैं, पैदल जाते हैं, रिक्शे भी नहीं जाने दे रहे, ना मोटरसाइकिल जाने दे रहे हैं। ठीक है, ये जवान पार्क है, इधर से भी पैदल जाते हैं। 2-3 दिन हो गए ऐसे हो रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जमान पार्क में गुज़श्ता रोज ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और एहलकारों की इयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा किया। आईजी पंजाब ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जख्मी होने वाले तमाम अफसरान और एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी काबिल सिताइश है, और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और बहाली के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत में इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर हंगामा आराई पर इमरान खान समेत पीटीआई के 17 रहनुमाओं पर सीटीडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने तोड़फोड़ में मुलविस मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं पर SHO थाना रमना इस्लामाबाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक इमरान खान के हमराह आने वाले हुजूम ने पुलिस पर पथराव किया और पीटीआई कारकुनान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। कारकुनों ने घेर कर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया और पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के दौरान तोड़फोड़ की फुटेज सामने आ गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम अदालतों और दीगर दफातर में पथराव से शीशे टूट गए। पीटीआई कारकुनों की पथराव से पानी के पाइपों को भी नुकसान पहुंचा। पाइप टूटने से पानी की टैंकियां लीक हो गईं। फुटेज में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में ईंटें और पत्थर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरीब और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी शुरू हो गई है। आज से 25 रमज़ान तक हर गरीब खानदान को 10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद हयात। हुकूमत ने गरीब तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने और आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया फराहम करने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है।
वफाकी हुकूमत की हिदायत पर लाहौर में भी रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स और ट्रैकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई है। रमज़ान पैकेज के तहत 1,58,00,000 से ज़ायद घरानों को आटे की फराहमी की जाएगी। मैं बड़ा खुश हूँ कि इसने प्री आटा शुरू किया हुआ है और ये हुकूमत से जो ना अच्छा काम है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। वो ना रमज़ान के लिए फ्री आटा दे रहे हैं तीन तोड़े। मेहरबानी उन्होंने दी कितना सानू आटा फ्री दिता है। मेहरबानी शहबाज शरीफ ने फ्री आटा दिता है। बस बड़ी मुश्किल चाहिए सी। रमज़ान के दौरान मॉडल बाज़ारों में मुफ्त आटे के ट्रक पॉइंट्स के साथ साथ सरकारी निर्खों से भी कम कीमत पर सब्सिडी के बगैर अशिया हुर्दोनोश फ्राहम की जाएंगी। जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे जो है तमाम पंजाब के मॉडल बाज़ार में इसके अलावा भी जो उन्होंने पॉइंट मखसूस की हैं वहाँ पे फ्री आटा दस्तयाब किया जा रहा है अवाम को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। महकमा खुराक ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को आटे की तकसीम के मुतालिक SOPs जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 6,78,000 टन आटा गरीब अवाम में तकसीम किया जाएगा। जो खानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे के प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया और आटे की तकसीम के अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने सेंटर में मौजूद मर्द और ख़वातीन से मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। उन्होंने मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर को मौके पर हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आटे के लिए आने वाले शहरियों की तस्दीक का अमल कम से कम वक्त में मुकम्मल करके उनको दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। नाज़रीन, शेखुपुरा और उसकी 5 तहसीलों में भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से रमज़ान पैकेज के तहत 60,000 रुपये से कम आमदन रखने वाले अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी शुरू कर दी गई है, जो 25 रमज़ानुल मुबारक तक जारी रहेगी। तफसील जानेंगे मोहम्मद इस्लाम गाजी की इस रिपोर्ट में। माह रमजानुल मुबारक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के लिए जिला शेखुपुरा में 114 सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि तहसील की सतह पर 5 मराकज ऐसे भी बनाए गए हैं जो आवाम के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। गवर्नमेंट के बहुत मशकूर है जो हमें फ्री में आटा मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने ये काम किया ना, बहुत अच्छा, दुनिया वध काम है। आटा ही है जिसके लिए हम मारे फिरते हैं। हम वज़ीर आज़म का बेहद मखसूस हैं कि उन्होंने हमें आटा फराहम किया। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, मुल्क वास्ते बहुत ही बेहतरी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दा भला होवे जिन्हें साडे ते भला कीता, भला वे जेरे गरीबां नूं देण दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी से लोगों की मुश्किलात में नुमाया कमी होगी। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुल्क की तारीख में पहली बार गरीब आवाम के लिए रमज़ान में मुफ्त आटे की फराहमी का आगाज़ हो गया है, जिसके तहत ज़िला लोधरा के 3,21,000 से ज़्यादा अफराद को आटे के थैले मुफ्त दिए जाएंगे। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। रमज़ान अल मुबारक में गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए ज़िला लोधरा में मुफ्त आटे की फराहमी शुरू हो गई है। रमज़ान अल मुबारक के दौरान ज़िला भर के मुस्तहिक गरीब और नादार 3,21,000 से ज़्यादा अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। हर मुस्तहिक फ़र्द को रमज़ान अल मुबारक के दौरान 10 किलोग्राम आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। हमारा ये पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहा है और इंतज़ामिया भरपूर मदद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से ही अभी शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी रश लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 सेकंड में एक आदमी को वो आटा दे दिया जाता है। ज़िला की तीनों तहसीलों में कायम 276 शॉप्स और रोज़ाना की बुनियाद पर 33,000 थैले फराहम किए जाएंगे। तहसील लोधरा में 148, तहसील दुनियापुर में 99, तहसील करोड़ पक्का में 29 शॉप के ज़रिए गरीब अफराद को मुफ्त आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं, ये उनका बहुत अच्छा काम है और ऐसे ही आवाम को रिलीफ देते रहें। वज़ीर आज़म को सस्ता पैकेज आटा दिया, हमें मिल गया है, रोजे रखेंगे, दुआएं देंगे, बड़ी मेहरबानी, गरीबों को आटा दिया इन्होंने। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने मुफ्त दिया, शुक्रिया अदा करें। अवामी सहूलत के पेश नज़र लोधरा की हर तहसील में 2 ट्रैकिंग पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। 25 शोबान से 25 रमज़ान तक मुंतखब करियाना स्टोर पर ट्रैकिंग पॉइंट पर मुफ्त आटा दस्तियाब होगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने मुफ्त आटे की फरहमी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घराने मुफ्त आटे का खसूसी पैकेज हासिल कर सकेंगे और गैर रजिस्टर्ड अफराद भी 8070 पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करके मुफ्त आटे की इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर चमन के इलाके रहमान काहुल में दहशत गर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। पाक फौज कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मेरा वतन मेरी आन, यकजान पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। शहरियों ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अज़्म का इयादा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में 23 मार्च को मनाए जाने वाले यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मुबारकबाद के पैगामात वाले पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी यूथ सोल्जर्स ऑफ इस्लाम और जम्मू कश्मीर वारिसीन शहदा की जानिब से श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में लगाए गए पोस्टर्स पर शहीद कायदे हुर्रियत सैयद अली गिलानी का मकबूल आम नारा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है दर्ज है। पाकिस्तानी परचम और पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स में पाकिस्तानियों को उनके कौमी दिन की मुबारकबाद दी गई है। पोस्टर्स में गो इंडिया गो बैक और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है जैसे नारे भी दर्ज हैं। केएमएस की जानिब से जारी की गई एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रियासती जबर में कई गुना इजाफा कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन नुसरत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, आसिया इंदराबी, नईम अहमद खान और खुरम परवेज समेत 4000 से जायद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, नौजवानों, तलबा और इंसानी हुकूक के कारकुनों को भारत की दूर दराज जेलों में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के जनरल सेक्रेटरी शेख अब्दुल मतीन ने इस्लामाबाद से जारी एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो मज़ीद ताख़ीर किए बगैर जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी करारदादों पर अमल दरामद करे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों को उनकी सरजमीन से महरूम करने और मकबूजा इलाके में हिंदुत्व एजेंडा मुसल्लत करने के लिए इसराइली तर्ज के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जिनेवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 52वें इजलास के मौके पर यूरोप में बसने वाली सिख बिरादरी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर भारतीय हुकूमत के मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने कहा कि मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ हमलों और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। भारत में सिख कम्यूनिटी के हक़ की बात करने और खालिस्तान का नाम लेने वालों को गैर आइनी तौर पर कैद किया जाता है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी सिखों पर होने वाले मसालिम का नोटिस ले और उनके मावराए आइन कत्ल, जबरी गुमशुदगी और सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से भारत पर दबाव डाले। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तीन साल वक्फे की ये बात भूले ना कभी किसी भी हाल। चलन जमाने का बदला और बदली सबने चाल। 3 साल वक्फे की ये बात भूले न कभी किसी भी हाल। घर बार की खुशियों को खुद से ही संभाला है। खानदान के बच्चों को दिल से पाला है। वक्फे से ही मुमकिन खुशियों का तसलसल है। माँ की अच्छी सेहत का रखना है सबको ख्याल। भूले न कभी किसी भी हाल। महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब। खबरनामे में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने भारत से आज़ादी के हक में वोट डाला। वोटिंग के दौरान भारतीय हैकर्स मुसलसल साइबर हमले करते रहे। उधर भारतीय पंजाब में खालिस्तान के हामियों की गिरफ्तारी के बाद हालात मजीद बदतर हो गए हैं। तफसील जानेंगे अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट में। खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों सिखों ने खालिस्तान के हक में वोट डाला। शहर में रेफरेंडम के बायस फजा कशीदा रही। कशीदगी चंद रोज कबल सिखों के एहतजाज के नतीजे में भारतीय कौंसल खाने की बंदिश के बाद पैदा हुई थी। रेफरेंडम ऐसे करके ही हो रहे हैं, सानू तुसी गुलाम कर रहे हो, साडी सोच नू गुलाम कर रहे हो, पर खालसा पंथ खालिस्तान बन के रहूगा। खालिस्तान जिंदाबाद। सिख आज़ादी मंगते ने क्योंकि सानू उत्थे बोलने का अधिकार नहीं गा, सानू उत्थे अपनी गलबात करने का अधिकार नहीं गा।
ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए सफारती मैदान में नाकामी के बाद भारत साइबर हमलों पर उतर आया। खालिस्तान के क़याम के लिए सरगर्म तंजीम 6 फॉर जस्टिस के मुताबिक भारतीय हैकर्स ने 3 बार साइबर हमला किया, जिसके बायस ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मशीन तकरीबन 1.5 घंटे तक बंद रही। 2021 में शुरू होने वाला रेफरेंडम बरतानिया के 7 शहरों समेत स्विट्जरलैंड, इटली और कनाडा में 2 मुकामात पर मुनक्किद हो चुका है। उधर खालिस्तान के हामी रहनुमा अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद भारतीय पंजाब में हालात सरकार के काबू में नहीं आ रहे। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की मुअत्तली का दौरानिया बढ़ाकर कल दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। 2 दिन के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई है। पंजाब के तमाम बड़े अजला में दफ़ा 144 नाफिज है। पंजाब पुलिस अब तक सैकड़ों सिखों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि हजारों सिख पंजाब में खालिस्तानी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जवाल मासूम सिखों के नए मुतालबे से मरबूत हो चुका है और कुछ बईद नहीं कि भारत जल्द अंदरूनी खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने अपने ट्वीट में गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज जहाज़ों की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा कि गवादर बंदरगाह की रौनकें बहाल हो रही हैं, 2 जहाज़ गंदुम उतार रहे हैं, हज़ारों मकामी लोगों की मईशत बहाल हो रही है। अहसन इकबाल ने कहा कि इमरान न्याजी ने गवादर बंदरगाह को नज़रअंदाज करके नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। पिछले दौरे हुकूमत में हर शोबा ज़िंदगी में तनज़्ज़ुली हुई और ईरान से गवादर को 100 मेगावाट बिजली की फराहमी का मंसूबा मुकम्मल हो गया है। अब गवादर के घरेलू सार्फिन को बिला तात्तुल बिजली फराहम हो सकेगी। 138 किलोमीटर तरसीली लाइन की तनसीब का मंसूबा FWO ने रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया। मंसूबे में ईरान सरहद से जीवानी ग्रिड स्टेशन तक 58 किलोमीटर और जीवानी से ग्रिड स्टेशन ग्वादर तक 80 किलोमीटर बिजली की लाइनें लगाई गईं। ग्वादर में बिजली की मौजूदा ज़रूरत 130 मेगावाट है, जिसे मौजूदा ज़राए से मुकम्मल करना मुमकिन नहीं था। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं, नाअहल इमरान खान ने CPEC को ख़त्म किया, मईशत को तबाह किया और ख़जाना खाली करके आज अदालतों से भाग रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अदलिया के फैसलों को रोंदना पार्लियामेंट और आइन की बेहुरमती इस बात की अक्कास है कि ये एक एजेंडे के साथ आया है। एबटाबाद के नवाही गांव में सुई गैस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 2016 में अवाम से किया गया वादा आज पूरा कर दिया है। पाकिस्तान की तरक्की के 70% मंसूबे मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के नाम हैं। वज़ीर तालीम राना तनवीर कहते हैं कि नौजवान नस्ल को बेहतर तालीमी मौक़े फराहम करने में चैलेंजेस का सामना है, जिस पर काबू पाने के लिए पूरी तवज्जो मरकूज़ है। इस्लामाबाद में HEC के ज़ेरे एहतमाम 5वें वाइस चांसलर फोरम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद तालीमी निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। इस हवाले से रिसर्च सेंटर बनाने की ज़रूरत है ताकि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काबू पाया जा सके। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और आलमी शराकतदार पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान जल्द पोलियो से पाक मुल्क बन जाएगा। एक बयान के मुताबिक वज़ीर सेहत का कहना है कि फ्रांसीसी इदारे ने पोलियो के खात्मे के लिए $5.5 करोड़ की फंडिंग का ऐलान किया है, जिसके लिए उनके मशकूर हैं। AFD और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वफ्द के हमरा पोलियो प्रोग्राम का दौरा भी किया। वफ्द ने आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ के नुमाइंदों से मुलाकात की। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आलमी बिरादरी की तवज्जो की मुतकाज़ी है। इस मामले पर इंट्रा कश्मीर डायलॉग होना चाहिए, जिसमें तमाम फ़रीक़ैन शामिल हों। अमरीका जैसे ममालिक इस मसले के हल के लिए सालसी का किरदार अदा करें। मुजफ्फराबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के तरबियती कोर्स की शिरकत से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मोदी हुकूमत की अक़लियतों के साथ सलूक ने हिंदुस्तान की जमहूरियत का पोल खोल कर रख दिया है। मसला कश्मीर के हल की राह में हिंदुस्तान रुकावट है। सिंध के गवर्नर कामरान खान जसोरी कहते हैं कि मकामात मुक़द्दसा के बायस पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब को खुसूसी अहमियत देते हैं। कराची में पाकिस्तानी हज्जाज के इंतजामात करने वाले वफ्द से बातें करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि हर साल उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है और हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी लायक तहसीन है। गवर्नर ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत तर हो रहे हैं। वफ्द ने हुज्जाज कराम और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी सिटी में यूथ मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में रावलपिंडी के मुख्तलिफ सूबाई हलकों PP15, PP17 और PP18 में चौड़ा चौक, बन्नी, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, गौसिया चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में यूथ मेंबरशिप के दफातर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की मुकामी क़यादत, जिसमें मलिक इब्रार अहमद, साबिक MPA मलिक इफ्तिखार अहमद, राजा मोहम्मद हनीफ, शेख अरसलान हफीज़, यूथ कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी हसन औरंगजेब समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
اور ناظرین، کتاب میلوں کے انعقاد سے جہاں معاشرے میں کتاب دوستی کا رجحان فروغ پاتا ہے، وہیں کتب بینی کا کلچر معاشرے میں علم، رواداری اور امن کے فروغ کا بھی باعث بنتا ہے۔ اسلام آباد ادبی میلے کی تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ ادب، ثقافت، تہذیب اور آرٹ کے رنگوں سے سجے اسلام آباد ادبی میلے کا مقصد شہریوں کو ادب اور کتب کے قریب لانا اور علم دوستی کا فروغ تھا۔ میلے میں علمی و ادبی ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک ہی چھت تلے مختلف موضوعات پر ہزاروں کتابیں رکھی گئیں۔ ڈفرینٹ ہمارے سیگمنٹس ہیں، جو کہ ہمارا جو بھی مزاح ہے، جو نثر ہے، جو شعراء ہیں پاکستان کے 75 سال سے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی تو بہت ضروری تھی کہ یہاں پہ جو ماحول چل رہا ہے، لوگ سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں، ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ جو ایک ٹینس انوائرمنٹ ہے ہمارے اراؤنڈ، اس کے اندر اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اور پرٹیکولرلی جو لٹریری فیسٹیولز ہیں، اس طرح کے، یہ فریش ہوا کا جھونکا ہے۔ آرٹ گیلری میں مختلف مصوروں کی بنائی گئی پینٹنگز کی نمائش بھی کی گئی۔ ادبی میلے میں آئے شہریوں نے ادب اور لٹریچر کے پھیلاؤ کی کاوش کو سراہا اور کہا کہ اس سے تعلیم اور شعور پروان چڑھے گا۔ جس طرح کی آپ کو بکس چاہیے اس طرح کی پڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ نے ناولز لینے ہیں تو وہ ہیں، اگر آپ نے سیپریٹ ایک بک لینی ہے وہ بھی ہے۔ پیرنٹس جتنے بھی آ رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی ریفر کریں، بکس پڑھیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بچے زیادہ تر موبائلوں میں ٹیب میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وقفے سے ہونے چاہیے، کیونکہ جو ابھی ہے نا، لوگوں کا جو رجحان ادب کی طرف سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ادبی میلے کے موقع پر ادب، شاعری، ثقافت، تعلیم، نثر، اسلام آباد کی ترقی اور نوجوانوں کی ترقی کے کردار سمیت مختلف موضوعات پر مباحثوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ادبی اور ثقافتی میلے سماجی اور معاشی مسائل میں گرے معاشرے کو معلومات کی فراہمی کے ساتھ تفریح فراہم کرنے کا بھی ذریعہ ہیں۔ اسلام آباد فیسٹیول اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن کی معروف نیوز کاسٹر ماہپارہ صفدر کی کتاب میرا زمانہ میری کہانی کی تقریب رونمائی اسلام آباد میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ ماہپارہ صفدر کی خود نوشت ماضی کی ایک لازوال دستاویز ہے، جس میں ان کے عمر بھر کے مشاہدات کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد عثمان سے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی نیوز کاسٹر اور مصنف ماہپارہ صفدر کی کتاب میرا زمانہ میری کہانی کی رونمائی کی تقریب شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف ادبی، صحافتی اور دوسرے حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں ماہپارہ صفدر نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا اور سیکھا اسے بیان کیا۔ میں جس شعبے سے وابستہ تھی اس کی وجہ سے اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی اس کتاب کو دیکھ کر کسی کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، کسی کو اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں تو اپنا جاب کر رہی ہوں، ان لوگوں کی محبتیں ہی تو مجھے خاص بناتی ہیں۔ ان محبتوں نے ٹیلی ویژن سے میری وابستگی اور میری شناخت کو میرے لیے اعزاز میں بدل دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرت اللہ بابر، آصف خان، ارشد وحید، طلت نایاب زیدی، طاہر ملک، فائزہ خاتون نے کہا کہ مصنف ماہپارہ نے اپنی خود نوشت میں اپنے زمانے کے بعض تاریخی واقعات کو جس طرح اپنی نظر سے دیکھا اسی طرح بیان کیا۔ ان کی تحریریں سادہ اور جامع ہیں، جبکہ انداز بیاں بے تکلفانہ ہے۔ پی ٹی وی کے سابق ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر، آسمہ شرازی اور سعدیہ کمال نے کہا کہ ماہپارہ صفدر پی ٹی وی کی پہلی خاتون نیوز کاسٹر تھی۔ ان کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ بے شمار مشکلات کے باوجود انہوں نے ٹی وی میں کام کیا۔ اپنی کتاب میرا زمانہ میری کہانی میں انہوں نے تمام حقیقتوں کو بیان کیا جو خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ موسمیات کی اہمیت کے حوالے سے کراچی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل سہیل جمالی سے۔ موسمیات کا عالمی دن منانے کا مقصد موسمیاتی پیش گوئیوں میں محکمہ موسمیات کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور میڈیا کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ محکمہ موسمیات کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پگھلتے گلیشیئرز اور شدید مانسون بارشوں کے بعد دریاؤں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ سے انسانی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز کی فضا میں چھوڑتے ہیں نا، سب گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 0.8% ہے، لیکن سب سے زیادہ کنٹریبیوٹر ہیں یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، انڈیا ہے، جن کا میجر کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کلائمیٹ کی تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، تو کلائمیٹ چینج جب ہو رہا ہے تو وہ ساری دنیا کو بھی ایک وقت افیکٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ممالک کے جو زیادہ ولنریبل ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم جیسا ملک جیسا پاکستان جیسا ملک ہے، تو وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ عالمی سطح پر گلوبل وارمنگ کے ساتھ ساتھ گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج
आबी, फ़ज़ाई और मिट्टी में होने वाली आलूदगी दुनिया भर में बसने वाले अरबों इंसानों की सेहत और ग़िज़ा को मुतासिर कर रही है। मौसम, आबो हवा और पानी आपस में गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। माहौलियाती तब्दीली से हम आहंगी और जंगलात की कटाई पर काबू पाने से इस कुर्राए अर्ज़ का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सकता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौसमों का इंसानी मिजाज पर बहुत गहरा असर होता है। मौसम बहार के इंसानी मिजाज पर खुशगवार असरात से मुताल्लिक रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से सादिक बलोच। जाड़ों की शिद्दत से मौसम गर्मा की हिद्दत की जानिब सफ़र के दौरान दिलरुबा, खूबसूरत, दिलनशी और रंगो आहंग से संवरे मुख्तसर पड़ाव को बहार जैसा क्या खूबसूरत नाम मिला है, जिसकी रंगीन अंगड़ाइयाँ इंसान समेत तमाम जानदारों में झिलमिल छलावों जैसी उमंग और नबातात में खुशनुमा रंगों के दबंग इजहार का ऐलान बनती हैं। इंसान बहार में नई उमंग महसूस करता है। अपने इर्द गिर्द खुशनुमा, सतरंगी और लहलहाट देखकर इंसानी दिलो दिमाग की कैफियतें सरशारी, उम्मीद और खुशी के परतव में लिपट जाती हैं। दिलों की तमानियत और जहनों की फरहत अंगेज़ी बहार की रंग बरंग दिलकश सरायत कर जाने वाली खुशबुओं में निखर जाती है। दिल लगी, मुस्कराहट, खुश मिजाजी, खिलखलाहट और रोमान परवरी इस मौसम में अपनी आबोताब पे नज़र आती है। भंवरे फूलों के इश्क में और शहद की मक्खियाँ फूलों की मुश्क में मंडलाती नज़र आती हैं। सुबह शाम मौसम की ठंडक को तरोताज़गी पुरलुत्फ़ एहसास से इंसानी मिजाज को मुअत्तर करती है और यूं ये खूबसूरत मौसम मेलों ठेलों, रत जगों, फरहत और खुशी के खुशनुमा ऐलानों जैसा है। मौसम बहार अपने रंगों और खुशबुओं से इंसानी मिजाज को मुअत्तर करके उम्मीद, उमंग और तरंग सा एहसास पैदा करता है, जिससे फितरत निखर सी जाती है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहाँ जाती सर्दी लौट आई है। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे के साथ बारिश के ताज़ा सिलसिले के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली तो जाती सर्दी लौट आई और मौसम सर्द मगर खुशगवार हो गया। ऐसा लग रहा था कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बीच में अचानक से बारिशें स्टार्ट हो गईं आज से, और अभी दोबारा यह है कि हमने गर्म कपड़े पहनने भी शुरू कर दिए। गुज़श्ता 2 दिनों से जो बारिशें हो रही हैं उसके बाद ठंड ने दोबारा जो है ना अपने डेरे जमा लिए। मुजफ्फराबाद, जहलम और नीलम वैली समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। ताहम शहरियों ने मौसम की इस खुशगवार अंगड़ाई को खुश आमदीद कहा और गर्मा गर्म पकवानों के साथ मौसम के मज़े उड़ाते रहे। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मौसम की इस आंख मचोली का सिलसिला वक्फे के साथ रवां हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, गढ़ी तोपट्टा, ज़िला मुजफ्फराबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, ज़ेरी सिंध और कश्मीर में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि तुरबत में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, फैसलाबाद में 25, मुल्तान में 26, जबकि सरगोदा में भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में 22, लाहौर 24, कराची 33, पेशावर में 27, जबकि कोयटा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 के हवाले से, जो कि तमाम तर रनाइयों के साथ मुकम्मल हुआ। कई रिकॉर्ड्स बने, सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबलों से शायकीन खूब लुत्फअंदोज हुए। लाहौर कलंदर्स की टीम टाइटल का दिफा करने वाली पहली टीम बन गई। मुल्तान सुल्तान्स को मुसलसल दूसरे साल फाइनल में शिकस्त का सामना रहा। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी फाइनल में कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के कामयाब इनेकाद पर चेयरमैन पीसीबी की तारीफ की। ट्विटर पैगाम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के बेशतर अवार्ड्स मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों ने हासिल किए। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने अपनी तेज तरीन बॉलिंग से सबको हैरान कर दिया। 22 विकेटों के साथ वो PSL 8 के बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें 23 विकेटें उड़ाने वाले मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास आफरीदी को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला। उन्होंने रवां सीजन में वाहिद हैट्रिक भी की। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान सबसे ज्यादा 550 रन बनाकर टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर करार पाए। बेहतरीन विकेट कीपर का एजाज भी मोहम्मद रिजवान के नाम रहा। 404 रन और 9 विकेट लेने वाले कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम टूर्नामेंट के बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। मुल्तान सुल्तान्स के कैरन पोलार्ड को बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार इख्तिताम के बाद टीम ऑफ द PSL 8 का ऐलान कर दिया गया। PSL सीजन 8 की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी को PSL टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। दीगर खिलाड़ियों में मुल्तान सुल्तान्स के 5, पेशावर ज़ल्मी के 2, जबकि लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का एक खिलाड़ी शामिल है। प्लेयर्स में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस और रायली रूसो शामिल हैं। आजम खान, कैरन पोलार्ड, इमाद वसीम, राशिद खान, अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह भी टीम में शामिल हैं। साइम अयूब 12वें खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल हैं। बाउंड्री के आगे के उन्वान से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के जरिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए एहतमाम इस्लामाबाद में 7वां गर्ल्स क्रिकेट कप हुआ। तफसील जानते हैं नमूद मुस्लिम से। लड़कियों को बाख्तियार करने में मदद के लिए ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का 7वां गर्ल्स टूर्नामेंट मिशाल मॉडल स्कूल बरी इमाम ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में मिशाल मॉडल स्कूल ने गर्ल्स मॉडल स्कूल F6 को 22 रन से हराकर टाइटल अपने नाम किया। गर्ल्स कप इस्लामाबाद में 4 स्कूलों की टीमें शरीक हुई, जिनमें मिशाल मॉडल स्कूल बरी इमाम, SOS चिल्ड्रन विलेज, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स F61, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स I91 शामिल थी। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर नील हॉकिंस ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन खेल के जरिए सिनफी मसावात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान में लड़कियों की क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद में एक सालाना टूर्नामेंट से आगाज किया था, लेकिन इसके बाद इसे लाहौर और कराची तक फैला दिया है। ख़वातीन खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के मुकाबले लड़कियों को मौके फराहम करने के मुतरादिफ है। हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आगे भी फ्यूचर में भी इस तरह वुमेंस के क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। एज ए गर्ल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार गर्ल्स को पाकिस्तान में मौका मिलता है और आप देख रहे हैं कि दे आर सो गुड इन क्रिकेट और इनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तो हमारे पास हमारी नेशनल टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स आएंगे। लाइक पाकिस्तान में इस तरह से लड़कियों को दी जा रही है जो फैसिलिटीज़ जिस तरह से लड़कों को देती हैं, तो इस तरह से लड़कियों को भी जब दी जा रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये इक्वलिटी है। लड़कियों ने साबिक क्रिकेटर और क्रिकेट बोर्ड के फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोचेस की जानिब से मुनक्किदा मुकाबले और 8 रोज़ा कोचिंग क्लिनिक में भी शिरकत की। लड़कियों के लिए ऐसे इवेंट का इनेकाद और वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोचेस के ज़ेरे निगरानी होना यकीनन खुश आइंद है। इससे लड़कियों में से अच्छा टैलेंट सामने आएगा और कौमी टीम को भी अच्छा टैलेंट और अच्छे खिलाड़ी मुयस्सर होंगे। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के तैमूर ख्वाजा ने हब रैली क्रॉस का टाइटल जीत लिया। तैमूर ख्वाजा ने 30 किलोमीटर का फासला 22 मिनट और 29 सेकंड्स में तय किया। 51 सेकंड्स के फर्क से दिफाई चैंपियन साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कराची के शिराज कुरैशी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की रेस में दीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। रावलपिंडी में मुख्तलिफ कैटेगरीज की रेसेस का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन के 30, ओपन कैटेगरी के 352 और अंडर 16 के 89 नौजवानों ने हिस्सा लिया। अंडर 16 में तैयब ने पहली पोजीशन हासिल की। ओपन कैटेगरी में मोहम्मद अख्तर फाते रहे। रेस का ट्रैक 5 किलोमीटर तवील था। आखिर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट्स में इनामात तकसीम किए गए। पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत इमरान बट और अंडर 19 टीम की क़यादत साद बेग करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 30 अप्रैल से 17 मई तक बांग्लादेश का दौरा करेगी। दौरे में एक 4 रोज़ा, 5 वनडे और एक T20 मैच खेला जाएगा।
पाकिस्तान शाहीन्स 3 से 27 मई तक जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। इस दौरे में 2 4 रोजा और 6 वनडे मैचेस शामिल हैं। वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका की टीम फॉलो ऑन का शिकार हो गई। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड के 580 रन के जवाब में 164 रन पर ढेर हो गई। कप्तान डिमित्री नार्तने 89 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हैरी और माइकल ब्रेसवेल ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने 2 विकेटों पर 113 रन बना लिए। 2 मैच की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने अबहा को 2-1 से हरा दिया। रियाज में खेले गए मैच के पहले हाफ में अबहा की टीम ने बढ़तरी हासिल की। अब्दुल फतेह ने 26वें मिनट में गोल किया। दूसरे हाफ में अल नस्र की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। खेल के आखिरी लम्हात में टेल्सिका ने पेनल्टी किक पर गोल करके अल नस्र को कामयाबी से हमकिनार किया। लीग में अल हलाल पहले और अल नस्र दूसरे नंबर पर मौजूद है। और नाज़रीन, पहले चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा की इख्तितामी तकरीब कराची में हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेलिंग चैम्पियनशिप के दौरान मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के कुल 12 मुकाबले मुनक़िद हुए। चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, मिस्र, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड समेत पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया मुल्क में सेलिंग के फ़रोग़ के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के सेलिंग मुकाबले मुनक़िद करवाती रहेगी। तकरीब के अख्ताम पर नेवल चीफ ने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के फ़ातिह और रनर अप खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।